اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کا ہمارا یہ درس جو سلسلے وار چل رہا ہے، جس کی کتنی سیریز ہو چکی ہے آج الحمدللہ سیرت کا یہ 8واں درس ہے۔ پچھلے درس کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے کس پڑاؤ پر چل رہے تھے؟ 50 سال پورے ہو گئے تھے الحمدللہ۔ 50 سال تک ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختصراً جان لیا، اس کی کچھ باتوں کو جان لیا، کچھ پوائنٹس کو جان لیا الحمدللہ۔ میں نے آپ کو آخری میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری عمر کے اندر، میں نے ذکر کیا 50 سال کے، یعنی جو میرا 7واں درس تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 انتقال ہوئے تھے، ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ کا، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا حضرت سودا بنت زمعہ سے۔ رمضان میں انتقال ہوا تھا، اس کے اگلے مہینے آپ نے نکاح کیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں آپ کی عمر کے 50ویں سال کی، شوال کی۔ کون سے مہینے کی؟ شوال کا مہینہ، 50واں سال۔ اب اللہ جی نبوت کا 10واں سال رہے گا، آپ کی زندگی کا 50واں سال رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مکہ کے اندر آپ کے جو 2 سب سے بڑے سپورٹر تھے، جن کی وجہ سے کفار مکہ کو کچھ بولنے کے پہلے سوچا کرتے تھے، تھوڑا ان کو ڈر تھا کہ ابو طالب سامنے کھڑے ہیں، حضرت خدیجہ چونکہ مال والی تھی، دولت والی تھی، سردار تھی، اس لیے کہیں نہ کہیں ان دونوں کا آپ کو بڑا سپورٹ تھا۔ اب ان دونوں کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر نکل کر دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ مکہ سے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا ارادہ کیا تو آپ کو اپنے قریب میں سب سے اچھی جگہ جو نظر آئی تھی وہ تھی طائف۔ جگہ کا نام لکھ لیجئے، طائف۔ کیا نام تھا؟ طائف۔ طائف کی خاصیت یہ تھی کہ اس دور کے اندر بھی اور آج کے دور کے اندر بھی وہاں پر بڑے پیسے والے لوگ رہتے ہیں، اونچی جگہ ہے، مطلب پہاڑی علاقہ ہے، ٹھنڈک وہاں پر ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، اور وہاں پر اس دور کے اندر بھی بڑے پیسے والے لوگ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا 10واں سال اور آپ کی عمر کا 50واں سال طائف کا سفر کا آپ نے ارادہ کیا۔ اس کے لیے آپ اپنے ساتھ اپنے غلام زید بن حارثہ کو لے گئے۔ کس کو؟ زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کیا، اس کے لیے اپنے ساتھ اپنے غلام زید بن حارثہ کو لیا اور آپ وہاں پر گئے ایک قبیلے کو دعوت دینے کے لیے۔ جو قبیلہ وہاں رہا کرتا تھا اس کا نام تھا قبیلہ ثقیف۔ سا قاف یا فا، ثقیف۔ ثقیف یہ قبیلے کا نام ہے جو وہاں پر رہا کرتے تھے، اور وہاں رہنے والوں کو ثقفی کہا جاتا تھا۔ ثقفی، ثقیفہ سے ثقفی کہا جاتا تھا۔ تو ثقیف نام کا قبیلہ وہاں پر رہا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا، اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیا۔ طائف کے سفر پر آپ جاتے ہیں، آپ کا مقصد یہ تھا کہ مکہ والے ایمان نہیں لا رہے ہیں، میری بات نہیں سن رہے ہیں، صحابہ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو میں نیا موقع تلاش کروں، نئی جگہ تلاش کروں، وہاں پر اپنی انرجی کو اور کتنا ویسٹ کروں گا؟ ٹھیک ہے، وہاں تو میں کام کر ہی رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں مجھے نئے پلیسز دعویٰ کے لیے کھولنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جب کسی جگہ پر دعوت کا کام کرے اور وہاں کام مشکل ہو جائے تو اسے نئے پلیس بھی دعوت کے تلاش کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اپنی انرجی کو ریگولر انہی لوگوں میں لگاتا رہے جو اسے اور پریشان کریں، بات نہ سنیں۔ ٹھیک ہے، ان میں بھی محنت کرے، پر نئے لوگ بھی اسے اپنی دعوت کے لیے تلاش کرنا چاہیے۔ دوسرا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانے کا یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے ذرا بڑے اور پیسے والے لوگ آپ کے سپورٹر بن جائیں۔ آپ طائف کیوں گئے تھے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ 2 وجہ اس کی بتا سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ آپ طائف اس لیے گئے تھے کیونکہ دعوت کا نیا پلیٹ فارم آپ کو تلاش کرنا تھا۔ دوسری وجہ آپ چاہتے تھے کہ اسلام کی تقویت کے لیے کچھ بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور طائف کے اندر بڑے پیسے والے لوگ، بڑے اسٹیٹس والے لوگ رہتے تھے، اس لیے آپ دعوت دینے کے لیے طائف گئے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حق کی دعوت کے لیے ہمیں بڑے لوگوں کو اسپیشلی ٹارگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب بڑے لوگ آتے ہیں تو دعوت کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ پیسے والے آ جائیں تو مسجد کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر، کام اچھے سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو اپنی دعوت کے اندر جہاں غریبوں کو دیکھنا چاہیے، وہیں امیروں کو دیکھ کر الگ سے ٹارگیٹ بنا کر انہیں بھی دعوت دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر دعوت دینے کے لیے زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ وہاں جو قبیلہ رہا کرتا تھا اس کا نام ثقیف تھا۔ اب وہاں پر آپ گئے اور آپ نے 3 لوگوں کے سامنے دین پیش کیا۔ طائف کے 3 مشہور سرداروں کے سامنے آپ نے کیا پیش کیا؟ اسلام کو پیش کیا۔ اب ان 3 سرداروں کے نام کیا تھے؟ عبد یا لیل۔ پہلا نام لکھیے، عبد یا لیل، عین بے دال، یا الف یا اور لام یہ لام، عبد یا لیل لکھا نام۔ دوسرا نام مسعود، تیسرا حبیب۔
तीनों नाम लिखें, अब्दयालैल, मसऊद और हबीब। इन 3 सरदारों के सामने आपने दीन पेश किया कि अब्दयालैल, मैं दीन लेकर आया हूँ, हक का दीन लाया हूँ, सच्चाई का मजहब लाया हूँ, मेरी बात को कबूल करो, मैं एक अल्लाह की तरफ बुलाने आया हूँ। उसने इनकार कर दिया। मसऊद को कहा, उसने इनकार कर दिया। हबीब को कहा, उसने भी इनकार कर दिया। तीनों ने अपने अपने झूठे रीजन बता दिए, पर तीनों ने इनकार कर दिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के अंदर तकरीबन 10 दिन तक रहे। कितने दिन? पहले तो आपने आम लोगों को, सरदारों को दावत दी, बड़े लोगों को दावत दी। जब उन्होंने आपकी दावत कबूल न की तो आपने किसको दावत देना शुरू की? आम लोगों को दावत देना शुरू की। आम लोगों तक दावत पहुंचाने के लिए कितने दिन वहां पर रुके आप? 10 दिन तक आप वहां पर रुके, दावत देते रहे। आखिर में नतीजा ही निकला कि कोई ये जो कुफ्फार थे, ये जो ना मानने वाले थे ताइफ वाले, वो आपके मुनकिर हो गए, आपके दुश्मन बन गए। अब इन्होंने क्या किया? आपको गालियां देना शुरू कर दी, आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अब आपको ये लगा कि यहाँ पर दावत कबूल नहीं होने वाली। अब वहां से वापस जब निकलने लगे तो उन्होंने बदमाशों को पीछे लगा दिया। किसको पीछे लगा दिया? बदमाशों को आपके पीछे लगा दिया। उन्होंने मारा, पीटा, पत्थर इतने मारे कि आपके जिस्म अथर से खून बहकर आपकी जूतियों में जमा हो गया। कहाँ जमा हो गया था? आपकी जूतियों के अंदर खून जमा हो गया। अगर आप रिवायत उठाकर देखें तो सही बुखारी की हदीस नंबर 3231, सही बुखारी हदीस नंबर 3231। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा कि बताइए, उहुद, आपने गज़वा उहुद के बारे में किसी ने सुना है? गज़वा उहुद के बारे में सुना है? गज़वा उहुद वो गज़वा है जिसमें आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए थे, आप बड़े परेशान हो गए थे। हजरत आयशा ने पूछा कि बताइए, गज़वा उहुद से ज्यादा कोई सख्त दिन आपके ऊपर आया? तो आपने कहा मेरे ऊपर वो दिन कौन सा था? ताइफ का दिन। कौन सा दिन? जब मैं वहां पर गया, दावत देने के लिए गया, लोगों को दीन बताया, उन्होंने मेरी बातों को कबूल न किया। कबूल न करना तो न करना, उन्होंने क्या किया? मेरे पीछे बदमाशों को लगा दिया। किसको लगा दिया? बदमाशों को लगा दिया। ये मेरे पीछे आए, इन्होंने मुझे पत्थरों से मारा, पत्थरों से इतना मारा कि खून बहकर मेरी जूतियों के अंदर जम गया। अल्लाह के नबी कहते हैं मैं इसी आलम के अंदर था, अचानक मुझ पर गशी तारी हो गई। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हजरत जिब्रील अमीन को पहाड़ों के फरिश्तों के साथ भेजा। किसके साथ भेजा? पहाड़ों के फरिश्ता आया, एक फरिश्ता था, पहाड़ का फरिश्ता, उसे लेकर भेजा। उन्होंने आपको उठाया और आकर कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप कहें तो हम ताइफ वालों को 2 पहाड़ के बीच में रखकर क्या कर देते हैं? पीस देते हैं, कुचल देते हैं, खत्म कर देते हैं। आप बोलो क्या करना है? अब सोचिए हम जैसे लोग क्या करेंगे? अगर कोई दावत के रास्ते में तकलीफ दे, पत्थर मारे, गालियां दे तो हम बर्दाश्त करेंगे, बदला लेंगे, मौका मिलेगा छोड़ेंगे ही नहीं उसको। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसा रहमतुल लिल आलमीन बनाया था, कैसा रहमत और नरमी वाला बनाया था, कितना नर्म दिल बनाया था। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लाह के नबी की नरमी की एक मिसाल दीजिए, दे सकते हैं आप ताइफ का वाकया? बिल्कुल दे सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये कहा गया कि अगर आप कहो तो हम पहाड़ों के बीच में इस बस्ती को रखें और पीस देते हैं, आपने कहा कि नहीं, बल अर्जू अन युखरिज अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदा वला युशरिकू बिही शैया। सही बुखारी हदीस नंबर 3231। अल्लाह के नबी कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम इन्हें मत मारो। मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये ईमान न लाते ना लाए, पर इनकी नस्लों के अंदर तू तौहीद और रिसालत पैदा कर देना। देख रहे हैं आपकी दुआ? जो पत्थर मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप उनके लिए किस चीज की दुआ कर रहे हैं? हिदायत की। किस चीज की दुआ? हिदायत की दुआ कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए जो आपको गालियां दे रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं नहीं, अल्लाह ताला मैं ये दुआ मांगता हूं तो इनको हिदायत दे दे, इनको सही रास्ता बता दे, इन्हें तौहीद बता दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ की, फरिश्ते वहां से चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है कि आज तक, आज भी अरब के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग ताइफ में रहते हैं और सबसे ज्यादा आलिम भी ताइफ में। पता है आपको? अरब के जितने मशहूर बड़े बड़े उलमा, उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक किसी न किसी कबीले से जो ताइफ का रहने वाला है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। क्या थी? आपकी दुआ थी। तो इससे पता चलता है, आपको कई चीजें इससे पता चली इस ताइफ के वाकये से, जिसमें एक चीज ये पता चलती है कि सरदारों को भी दावत देना चाहिए, बड़े लोगों को दावत देना चाहिए, क्योंकि उनके दावत में आने से दावत का काम आसान हो जाता है। दूसरी चीज ये पता चली अल्लाह के नबी का सब्र। क्या पता चला? अल्लाह के नबी का सब्र। जैसे आपसे कोई पूछे ताइफ के वाक़े से तुमने क्या सीखा, तो हम बताएंगे कि भाई दावत के लिए सरदारों को चुनना चाहिए। दूसरी बात, अल्लाह के नबी का सब्र पता चला कि आप कितने साबिर थे, और आप जैसे एक गाय को क्या होना चाहिए?
गुस्सा भी होना चाहिए। आज हमारे पास यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि दावत के रास्ते में हम लोग सब्र नहीं कर पाते हैं। एक बार समझाया नहीं माना, हमें गुस्सा आ जाता है, बुरा लग जाता है, नाराज हो जाते हैं, छोड़ दो इसको उसके हाल पे, सुनने वाला नहीं, मानने वाला नहीं। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि अगर कोई तुम्हें पत्थरों से मारकर खून जार भी कर दे तब भी तुम दावत का काम मत छोड़ना। तीसरी चीज पता चली अल्लाह के नबी की दुआ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए भी हिदायत की दुआ मांगा करते थे। अपने दुश्मनों के लिए, यहाँ तो माँ बाप के लिए दुआएं नहीं निकलती, भाई बहनों के लिए दुआएं नहीं निकलती, दोस्तों के लिए दुआएं नहीं निकलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनके लिए दुआ करते थे? अपने दुश्मनों के लिए दुआ किया करते थे। तो हमें भी दुश्मनों के लिए दुआ करना चाहिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर दावत का काम किया, ताइफ वालों को समझाया, वहां से निकलने लगे, उन्होंने पत्थरों को मारा और आपकी बात को नहीं माना। आप कभी अगर तारीख की किताबों को पढ़ेंगे, रहीकुल मख्तूम के अंदर भी एक वाकया जिक्र होता है, अद्दास का वाकया। किसका वाकया? पर यह वाकया सही नहीं है। मैं आपको ये वाकया सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं सुने तो आपको जहन में रहना चाहिए। जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार से टेक लगाए हुए थे तो ये बाग था। अब से सुन लीजिएगा इस वाक्य को। कुरैश के दो कुफ्फारे मक्का के दो लड़कों का ये बाग था। वहां पर उन्होंने अल्लाह के नबी को जब खून की हालत में देखा, गर्चे आपके दुश्मन थे पर कहीं ना कहीं कुरैशी थे, इसलिए आपसे मोहब्बत जाग पड़ी और उसके बाद वो अपने गुलाम अद्दास को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? अद्दास को भेजते हैं अल्लाह के नबी के पास। वो आते हैं आपके पास पहुंचते हैं। बोले कहा, तो अल्लाह के नबी से पूछते हैं तुम कहाँ से हो अद्दास? तो वो जगह का नाम बताते हैं, नैनवा से। कहाँ से? नैनवा। नैनवा से एक नबी थे, बता सकते हैं नाम? हजरत यूनुस, मछली वाले नबी हजरत यूनुस नैनवा के रहने वाले थे। तो अद्दास जैसे ही बोलते हैं मैं नैनवा का रहने वाला हूँ, तो अच्छा बोलते हैं आप यूनुस बिन मत्ता के एरिया के हो? तो ताज्जुब में पड़ जाता है कि इनको कैसे पता यूनुस बिन मत्ता? तो बोले यूनुस बिन मत्ता कौन? कहा वो नबी, मैं भी नबी, वो भी नबी, वो मेरे भाई थे। अद्दास जैसे ही ये बात सुनता है आपका सर चूमने लगता है, आपका हाथ चूमने लगता है, आपका पैर चूमने लगता है। जैसे ही अमल वो दूर से वो दोनों देखते हैं तो बोलते हैं देखो तुम्हारा गुलाम भी गया। क्या हो गया? तुम्हारा गुलाम भी गया। और बाज रिवायत में आता है कि उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, पर यह पूरा वाकया सही रिवायत से साबित नहीं है। पर जब भी लोग ताइफ का वाकया बयान करेंगे तो ये वाकया भी बयान करते हैं। और बाद हमारे सलफी उलमा की लिखी हुई किताबों में अद्दास का वाकया मिलता है, पर यह वाकया ज़ईफ हदीस से साबित है, सही हदीस से साबित नहीं है। इसलिए मैंने उसको आपके लिखवाया नहीं है, सिर्फ आपको बताया है कि कोई वाकया बताए ताकि आपको ये चीज ध्यान में रहे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ताइफ वालों को समझाया, उन्हें दीन बताया। अब उन्होंने आपका दीन नहीं माना। सोचिए आपको कितनी तकलीफ हुई होगी कि नहीं? भाई एक नबी हैं, लोग बात नहीं मान रहे, पत्थर मारे, तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तकलीफ हुई होगी, बुरा लगा होगा, आपका दिल बैठ रहा होगा क्या हो गया। वहां से चलकर आप थोड़ी आगे बढ़े, एक जगह आती है वादिये नखला। वादिये नखला, वादिये नखला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चलते हैं, वादिये नखला में आते हैं। तो वादिये नखला के अंदर बैठकर आप कुरान पढ़ने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तो यहाँ पर वो अजीम वाकया हुआ जिससे हम जिन्नात का इस्लाम कबूल करना बोलते हैं। जिन्नात का इस्लाम कबूल करना, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में दो जगह किया है। एक तो सूरह अहकाफ, सूरह अहकाफ आयत नंबर 29 से 31। सूरह अहकाफ आयत नंबर 29 से 31। और एक और सूरत में जिक्र है, बता सकते हैं? एक और सूरत जहां जिन्नों के इस्लाम का जिक्र है, सूरह जिन, मशहूर सूरत है सूरह जिन, जिसके अंदर अल्लाह ताला इब्तिदा के अंदर कहता है कुलू हिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि कह दीजिए मुझ पर वही करके अल्लाह ने मुझे ये बताया कि जब आप वहां बैठकर कुरान पढ़ रहे थे, कुछ जिन्नात ने आपके कुरान को सुना और इस्लाम कबूल कर लिया। क्या किया? तो सोचिए अल्लाह ताला अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता था कि जब आप ताइफ से गमजदा होकर निकले कि लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, तो अल्लाह ने किनको इस्लाम दे दिया? जिन्नात को इस्लाम दे दिया। यानी आपका सफर कबूल हुआ कि नहीं हुआ? कबूल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका पता चलता है कि एक दाई को अपने सफर के अंदर अगर दावत में आसानी ना मिले तो भी टेंशन, क्योंकि वो अल्लाह ताला है, वो बेहतर जानने वाला है कैसे उसे दीन पहुंचाना है, किस तक दीन पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी तरह जानता है, वो खुद इंतजाम करने वाला है। इसलिए एक मोमिन को कभी भी दावत के लाइन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दावत कबूल नहीं हुई, उसने मेरी बात को नहीं सुना। अब आपकी बात को किसने सुना और इस्लाम कबूल किया ये आप नहीं जानते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी नखला में गए, कुरान पढ़ रहे थे। वहां पर जिन्नात ने आपके हाथ पर इस्लाम का मतलब नहीं, आपके कुरान की आयतों को सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन एक पॉइंट वाली बात यह है कि आपको पता नहीं चला था। आपको पता
जिन्नात आए चले गए, सुन लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, पर आपको पता, आपको किसने बताया? किसने बताया आपको? अल्लाह ताला ने सूरह जिन के अंदर बताया कि सुनिए, अल्लाह ताला ने मुझे वही करके ये बताया है कि जिन्नात ने कुरान को सुना, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अल्लाह ताला बता रहा है कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें बताया किसने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। यानी सारी तो ताकत और कुदरत किसके इख्तियार में है? तो इस्लाम, जिन्नात इस्लाम कबूल करते हैं। इसी सफर के रास्ते में जिन्नात के इस्लाम कबूल करने का फायदा क्या था? जिन्नात के इस्लाम कबूल करने का फायदा क्या था? सबसे पहला फायदा अल्लाह के नबी को तसल्ली। अल्लाह के नबी को क्या देना? तसल्ली देना। दूसरा, आपके सफर के मकसद को पूरा करना। भाई इतनी लंबी ट्रैवलिंग की, इतने दिन रुके तो कुछ फायदा मिलना चाहिए ना, तो आपके सफर के मकसद को पूरा करना, सफर के मकसद को पूरा करना। और तीसरी चीज ये बताना कि इस्लाम जो है इंसान और जिन्नात दोनों के लिए। इस्लाम मजहब किसके लिए? इंसान और जिन्नात। और अल्लाह के नबी नबी है किस किस के लिए? इंसान और दोनों के लिए नबी है। ये बात बताना मकसद से। 3 फायदे याद रहेंगे आपको। भाई कोई पूछे कि जिन्नात इस्लाम लाए, उसका फायदा क्या? 3 फायदा बता सकते हैं ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ताइफ गए, वहां दावत दी, दावत नहीं मानी, जिन्नात ने इस्लाम को कबूल किया। अब जब आप वापस मक्का आने लगे तो आपको टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई? कि यहाँ पर तो सारे दुश्मन बने बैठे हैं, अब मैं एक बार ताइफ चले गया हूँ दावत देने के लिए, इनको पता चलेगा तो ये और ज्यादा बुरा हाल कर देंगे, तो अब मैं मक्का में कैसे जाऊं? क्या करूं मक्का में? अब मैं कैसे जाऊं? तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी में एक लफ्ज बोलते हैं जवार। क्या बोलते हैं? जवार। जवार कहा जाता है किसी को साथी बनाना, किसी को साथी बनाना। अरब के अंदर एक अजीब चीज ये थी कि जैसे अगर कोई दुश्मन है, अगर कोई दुश्मन है, दुश्मन को अगर कोई पनाह दे दे तो उस दुश्मन को आप मार नहीं सकते। अगर किसी ने पनाह दे दी हो तो क्या कर सकते हो? आप मार नहीं सकते। अगर कोई उसे पनाह दे दे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि अब अगर मक्का में एंट्री करनी है तो किसी को अपना साथी बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसी बड़े आदमी को अपना साथी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तलाश करना पड़ेगा मक्का में कैसे आऊं, कैसे एंट्री करूं, मददगार तलाश करना पड़ेगा। इसके लिए आपने 3 लोगों पर बात रखी थी। कितने लोगों पर? सबसे पहले अखनस बिन शरीक। अखनस बिन शरीक नाम लिखा आपने। अखनस बिन शरीक के पास आपने खबर पहुंचाई कि मैं मक्का आना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सपोर्टर बन जाओ, मक्का में ये ऐलान कर दो कि अब ये मेरे साथी हैं, मेरे जवार में हैं, तो मुझे कोई तकलीफ ना देगा। तो अखनस बिन शरीक ने मना कर दिया। क्या किया? मना कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर आपने कहा सुहेल बिन अम्र को। सुहेल बिन अम्र को आपने कहा कि भाई तुम मुझे जवार दे दो, साथ दे दो, ताकि मैं मक्का में एंट्री कर लूं, मेरी मदद कर दो। उसने भी क्या किया? इनकार कर दिया। आखिर में आपने कहा तीसरा शख्स जिसको आपने कहा था मुतअम बिन आदी। मुतअम बिन आदी को आपने कहा कि मैं मक्का आना चाहता हूं, तुम मेरे सपोर्टर बन जाओ। तो मुतअम बिन आदी ने कहा कि मैं आपका सपोर्टर हूं। क्या हूं? मैं आपका सपोर्टर हूं। जैसे ही आपने कहा और उसने माना, मुतअम बिन आदी काबा के अंदर जाता है और कुरैश के सामने चिल्लाकर कहता है कि या माशरल कुरैश इन्नी कद अजरतु मुहम्मदा। क्या कुरैशी लोगों सुनो, ये आप चाहें तो रहीकुल मखतूम में मिल जाएगा, सीरत इब्न हिशाम में जुमले मिल जाएंगे। और उसने जाकर कहा था, मुतअम बिन आदी ने जाकर कहा कि कुरैश वालों सुनो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवार दे दिया है, सपोर्ट दे दिया है, अब इन्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। और ऐसे ही नहीं कि अकेले गए, मुतअम बिन आदी ने अपने लड़कों को, रिश्तेदारों को, पूरे खानदान को जमा किया, तलवार लेकर सब गए और हमने कहा कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट दे दिया है, अब अगर इन्हें कोई तकलीफ देगा तो हमें तकलीफ देगा। जब आपको इसकी मदद का यकीन हो गया तो आप मक्का के अंदर एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? मक्का में एंट्री की, मक्का के अंदर आप आए। मक्का में आने के बाद आपने काबा का तवाफ किया। तवाफ करने के बाद आप अपने घर के अंदर गए और घर तक ये लोग बराबर आपके साथ में रहे, आपको सपोर्ट दिया। इसे जवार अरबी के अंदर कहा जाता है। अब इससे हमें क्या पता चला? इससे ये पता चला कि दावत की लाइन में किसी सपोर्टर का होना जरूरी है। जब आप कमजोरी महसूस करें तो सपोर्ट लेना कोई बुराई वाली बात। अब बताइए एक चीज, आप यहाँ कभी गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या किसी के सपोर्टर की जरूरत थी? भाई अगर आप चाहते तो अल्लाह को बोलते, अल्लाह फरिश्ते नाजिल कर देता कि नहीं करता? पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्ट लेकर उम्मत को सिखा रहे हैं कि तुम्हें जब परेशानी आए तो अकेले काम मत करो, किसी को अपना
साथी बना लो, किसी को अपना, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सारी ताकत और इख्तियार वाले, जो चाहते अल्लाह आपको अता कर देता, उसके बाद आप सपोर्ट मांग रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी सपोर्ट ले सकते हैं, हम मदद ले सकते हैं। मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए मदद लेने के अंदर शर्माना नहीं चाहिए, दावत के रास्ते पर मदद लेना चाहिए। अच्छा बताइए, आपके पहले कोई नबी है जिन्होंने मदद मांगी थी, सपोर्टर मांगा था? माशाअल्लाह, किसने मांगा था? किसको मांगा था? क्या नाम था उनका? हारून अखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दावत देने गए फिरौन के सामने, आप ये मिसाल जरूर लिखिएगा कि जवार के बारे में अगर कोई एतराज करे कि अल्लाह के नबी के बारे में आप बोल रहे हो कि उन्होंने सपोर्ट मांगा, आपको सपोर्ट की क्या जरूरत है? तो आपसे पहले भी नबी ने सपोर्ट मांगा, उनका नाम हजरत मूसा। सपोर्ट में किसको मांगा था? हारून को। क्या कहा था कि अल्लाह ताला मैं दावत देने जरा फिरौन को जा रहा हूँ, फिरौन है ही सुपर पावर, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, बहुत तकलीफ देने वाला आदमी है, आप जरा हारून के जरिए मेरी मदद कर दो। किसके जरिए मदद कर दो? वजदुद भी आजरी, उसके जरिए मेरी मदद कर दो, उसे नबी बना दो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हारून को भी क्या दे दी थी? नबूवत अता कर दी थी, और उन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या बना दिया था? सपोर्टर बना दिया था। इसी तरीके से एक जवार, एक मदद मांगी थी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इनके बाद, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी मदद मांगी थी। किससे? इब्नु दुगन्ना, अलिफ बा नून इब्न अद-दुगन्ना, अलिफ लाम दाल गैन नून गोलता, दिखा ना? इब्नु दुगन्ना से अबू बकर सिद्दीक ने जवार मांगा था कि भाई मक्का में आ रहा हूँ, दावत देने के लिए मक्का में रहना है, मक्का वाले बहुत परेशान कर रहे, जरा मेरी मदद कर दो। तो इब्नु दुगन्ना ने जब ये कुरैश के सामने कहा कि मैंने अबू बकर सिद्दीक को अपना सपोर्ट दे दिया है, तो कुरैश क्या कहते हैं आपसे? कुरैश कहते हैं ठीक है तूने सपोर्ट दे दिया चलेगा, पर एक शर्त ये कि अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, घर में नमाज पढ़ेंगे। कहाँ नमाज पढ़ेंगे? यानी इबादत कुरान जो भी इनको करना है कहाँ पर करेंगे? घर में करेंगे, मस्जिद में आकर नहीं करेंगे। अब इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने घर के अंदर कुरान पढ़ते थे, इतनी तेज आवाज में पढ़ते कि मुशरिकीन की सारी औरत बच्चे आपके घर के सामने आ जाते कुरान सुनने के लिए, आपकी तिलावत सुनने के लिए। जब ये बात कुफ्फार कुरैश को पहुंची तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि हम वहां रोक रहे हैं, यहाँ तो हमारे घर वाले मुसलमान हो जाएंगे। टेंशन के मारे फिर इब्न दुगन्ना को बुलाया और कहा कि तुम्हारे साथी को बोलो कि घर में धीरे आवाज में पढ़े। कैसे पढ़े? धीरे आवाज में पढ़े। अब अबू बकर सिद्दीक के बाद इब्न दुगन्ना ने आकर कहा कि भाई तुम धीरे पढ़ा करो। तो आपने कहा कि आज से मैं तेरे सपोर्ट को तुझे वापस करता हूँ, मैं अल्लाह और उसके नबी का सपोर्ट लेता हूँ। क्या कहा था? तेरा सपोर्ट वापस। अब किसका सपोर्ट मांग रहा हूँ मैं? अल्लाह और उसके नबी का। यानी मैं कुरान से दूर होने वाला। यानी इससे पता चलता है कि दावत की लाइन में सपोर्टर मांगो, पर ऐसा सपोर्टर नहीं जो आपको दीनी से रोक दे। होते ना कई बार सपोर्टर ऐसा था, अरे भैया अगर करना है ना अभी तो छोड़ो, अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा, दिन की बात करना छोड़ दो, दावत का काम छोड़ दो। ऐसे लोगों को सपोर्टर उसको बनाओ जो दीन में मदद करे, उसको मत बनाओ जो दीन के काम से रोक दे। ये बातें आप इन पॉइंट्स पर गौर कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख पा रहे हैं आप इसको? ये मकसद है हमारा, ये सीरत पढ़ने का मकसद ही है हमारा कि हम इससे क्या सीख रहे हैं, वरना सुनना या कहानी सुनना मकसद नहीं है हमारा। अब लिख पाए अबू बकर सिद्दीक को किसने जवाब दिया था? इब्न दुगन्ना ने। और सपोर्ट जब दिया और कहा कि कुरान धीरे पढ़ो, काम धीरे करो, तो क्या किया अबू बकर सिद्दीक ने? वापस कर दिया कि जाओ तुम्हारा सपोर्ट तुमको वापस, मैं अल्लाह और उसके रसूल के सपोर्ट से राजी हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये सब कौन सी उम्र चल रही है आपकी? 50 साल। महीना मैंने कौन सा बताया था? शव्वाल का। शव्वाल के बाद महीना कौन सा आता है? अरबी में महीनों के नाम बोलिए तो एक बार। मुहर्रम से बोलिए जी। मुहर्रम, सफर, हाँ 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 हाँ, रजब, शाबान और रमदान, फिर शव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। जिलकाद जिलहिज के महीने में कौन सी इबादत करते हैं लोग? हज की इबादत। हज की इबादत होती है कि नहीं? तो उस दौर के अंदर चूंकि हज का जो सिस्टम है ना, ताइफ का यानी तवाफ करने का, हज का, ये तो बहुत पुराना सिस्टम है, कब से चले आ रहे थे लोग। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शव्वाल के महीने में गए ताइफ वालों को दावत देने, ये सारा मामला हुआ। अब जिलकाद के महीने में आपने देखा कि हाजी आना शुरू हो गए। क्या होना शुरू हो गए? हाजी आना शुरू हो गए। तो आपने इस हज को क्या किया? दावत के लिए इस्तेमाल करने का इरादा किया। आपने बोला इतने सारे कबीले यहाँ पर आएंगे, सब लोग आने वाले हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त को दावत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए तैयारी करते हैं। और हज का जब मौसम आता है, जितने कबीले वहां पर हज पर आते हैं, आप अलग अलग से मिलकर उनको दावत दिया करते थे। क्या किया करते थे?
जिसमें से आप 2-3 कबीलों के मशहूर नाम लिख लीजिए जिनको आपने दावत दी थी। बनु कल्ब, बनु कल्ब लिखा, कल्ब काफ लाम्बा कल्ब। उसके बाद बनु हनीफा, बनु हनीफा। एक लिखिए बनु आमिर, बनु आमिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलकात के महीने के अंदर जब हाजी आना शुरू हुए, आपने अब दावत का इरादा किया। अब एक एक के पास जाते, दीन बताते, दीन समझाते। और इसी दौर के अंदर 2 मशहूर शख्सियतों ने इस्लाम कबूल किया था। उन दोनों के नाम लिखिए, अबू जर गिफारी, अबू जर गिफारी मशहूर नाम है, सुना है अपने साहबी का नाम, हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और दूसरे तुफैल बिन अम्र अद-दौसी, तुफैल बिन अम्र अद-दौसी, तुफैल बिन अम्र अद-दौसी। हातिम ताई का नाम सुना है किसी ने? बहुत सखी आदमी था वो, इसी दोस्त कबीले का था। तुफैल बिन अम्र अद-दौसी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, मदीना के रहने वाले थे, इन्होंने सुना कि मक्का के अंदर कोई आया है, दीन की बात बताता है। इन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ चेक करके आओ कौन है क्या है, क्योंकि अबू ज़र ग़िफ़ारी की बड़ी इज्जत थी मदीना के अंदर। आप वहां जाते हैं, भाई चेक करके आके पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो बोले एक ऐसा आदमी है जो लोगों को हलाल की तरफ बुलाता है और हराम से रोकता है। ये जाकर जब बताया तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का आते हैं और आपके हाथ पर क्या कबूल कर लेते हैं? इस्लाम। ये इसी दौर की बात चल रही है, आपके 50 साल की उम्र की बात चल रही है। ये क्या करते हैं, आकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग वाकया था तुफैल बिन अम्र अद-दौसी के इस्लाम का। इस वाक्य को मैं डिटेल से रख रहा हूँ, थोड़ी तफसील के साथ पूरा वाक्य बता रहा हूँ ताकि जहन में आपके बात रहे और ये भी पता रहे कि कुफ्फार मक्का क्या क्या साजिशें किया करते थे इस्लाम से रोकने के लिए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था चूंकि दावत देना, ये बात पूरा इलाका जानता था। कुफ्फार मक्का ने क्या किया कि अब हज पर अलग अलग कबीले के लोग आ रहे हैं, अगर ये इस्लाम कबूल कर लेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत चारों तरफ फैल जाएगी। तो ये क्या करते, मक्का की बाउंड्री पे बैठ जाते। कहाँ बैठ जाते? बाउंड्री पर। और जो भी अंदर आता उससे बोलते कान में रुई लगा लो। क्या करो, कान में रुई लगा लो, क्योंकि मक्का के अंदर एक बद्दीन आया, उसकी बात सुनोगे तो बहक जाओगे। हमारे यहाँ बोलते कुरान पढ़ोगे तो बहक जाओगे, इनकी सुनोगे तो बहक जाओगे और उनकी सुनोगे तो बहक जाओगे। अपने यही सिस्टम चलता है कि नहीं? तो ये सिस्टम देने वाले कौन? कुफ्फारे मक्का। कौन है देने वाले? कुफ्फारे मक्का का सिस्टम था कि उनकी सुनोगे तो बहक जाओगे। अब इन्होंने क्या किया, तुफैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का के अंदर आने लगे तो इन्होंने कहा कि सुनो, मक्का के अंदर जा रहे हो, सिर्फ तवाफ करना, काबा के आसपास एक आदमी मिलेगा कुछ पढ़ता हुआ, उसकी बात को बिल्कुल मत सुनना और कान में क्या कर लो, रुई लगा लो। अब तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने कान पर रुई लगा ली, कान पर रुई लगाकर मैं तवाफ करने लगा। तवाफ करते करते मैंने क्या देखा कि एक आदमी कुछ पढ़ रहा है। क्या कर रहा है एक आदमी? और ये कौन थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं जरा जरा सी आवाज, रुई के बाद भी आवाज आ रही थी, जरा जरा सी आवाज आई तो कलाम बड़ा अच्छा लगा, कलाम में बड़ी खुशी महसूस हुई। तो मैं उस कलाम को सुनने के लिए, अब मेरे दिमाग में क्या बात आई कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं कबीले का सरदार, मैं शेर शायरी और अरबी जबान को जानने वाला, ऐसा कैसे कोई आदमी मुझे बहका देगा। वो क्या करते हैं, कान से दोनों रुई निकाल देते हैं और जैसे ही निकालते हैं और अल्लाह का कलाम सुनते हैं और उन्हें ये यकीन हो जाता है कि कुरान अल्लाह का मुअजिज़ा है। कुरान अल्लाह का, भाई कोई आपसे सवाल करे हजरत ईसा के पास मुअजिज़े थे, हजरत मूसा के पास मुअजिज़े थे, अल्लाह के नबी का मुअजिज़ा कौन सा है? कुरान। आपने कहा कि अल्लाह ने मुझे ऐसा मुअजिज़ा दिया है जो खत्म होने वाला, भाई अल्लाह के नबी के पहले जितने नबी आए उनका मुअजिज़ा नबियों के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। पर अल्लाह के नबी का मुअजिज़ा कब तक बाकी रहेगा? कयामत तक बाकी रहेगा। तो ये आपका मौजूदा था कुरान। जैसे ही तुफैल बिन अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की तिलावत को सुनते हैं, चूंकि वो अरबी के जानने वाले थे, वो कहते हैं ये सच्चा कलमा है, ये सच्ची बात है, ये अल्लाह की बात है, इसके अंदर कुछ झूठ नहीं है, इसके अंदर कोई फरेब नहीं है। और वो फौरन उसी जगह पर क्या करते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब जैसे ही तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी इस्लाम कबूल करते हैं, कुफ्फार मक्का इनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो तुफैल इनको एक धमकी देते हैं, क्योंकि तुफैल थे दोस्त कबीले के और दोस्त कबीले से गेहूं आया करता था। क्या आता था? गेहूं सारा उधर से मक्का आया करता था। कहा अल्लाह की कसम, अगर एक हाथ मुझ पर उठाया ना, एक दाना गेहूं तुम्हारे पास नहीं आएगा। धमकी दी। क्या दी? कि अगर एक दाना गेहूं का नहीं आने दूंगा, अगर मेरे ऊपर हाथ उठाया। तो सारे डर गए, घबरा गए और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया। तो इस दौर से ये काम शुरू हुआ कि दीन मक्का के कहां जाने लगा, अब बाहर जाने लगा। दोस्त कबीले पहुंच गया, अबू ज़र ग़िफ़ारी की दावत के जरिए मदीना पहुंच गया। अब क्या हुआ, मक्का से निकलकर ये दावत आस पास के
علاقوں میں جانے لگی, شہروں کے اندر جانے لگی, یعنی آپ کی 85 سال سے دعوت مکہ سے کہاں جانے لگ گئی تھی؟ باہر بھی جانے لگ گئی تھی. اس دور کے اندر حج کے سفر کے اندر دوست قبیلے والے, بنو کلب, بنو حنیفہ, مدینہ, کئی علاقوں کے لوگوں نے اسلام سنا اور کئی علاقوں کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. تو اس عمر کے اندر آپ کا یہ اسلام عام ہونے لگا, اور یہی وہ آپ کی عمر تھی جس میں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تھا. نکاح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 50 یا 51. 51 کا اسٹارٹنگ یا 50 سال. حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر جانتے ہیں کتنی تھی نکاح کے وقت؟ 6 سال. کتنے سال؟ 6 سال. اور آپ کی جب بدائی ہوئی آپ کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال. 9 سال. صحیح روایت کے اعتبار سے 9 سال. اب ہمارے ہندوستانی کلچر میں چیز سمجھ میں آتی ہے؟ آتی ہے سمجھ میں؟ کئی مستشرقین نے اس پر اعتراض کیا. اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ رنگیلا رسول تک کتاب لکھ کر لوگوں نے کہا کیونکہ وہ عرب کے حالات کو نہیں جانتے. عربی قبیلوں کے اندر یہ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کا پہلا رشتہ تھا, اور جبکہ اللہ کے نبی کا یہ رشتہ آپ نے کیا بھی نہیں تھا, آپ تک رشتہ پہنچایا گیا تھا. آپ سے پہلے بھی حضرت عائشہ کو ایک نکاح کا پیغام آ چکا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی, کوئی عمر والا مسئلہ نہیں تھا. یعنی عرب کے اندر, عربی قبیلوں کے اندر, پہاڑی علاقوں میں گرم کھانے کی وجہ سے بچیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں, ان کے نکاح جلدی ہو جاتے ہیں. اور آج تک یہ دستور چل رہا ہے کہ وہاں پر عمر کا بہت زیادہ لحاظ نہیں پایا جاتا. بڑے سے چھوٹے کی, چھوٹے کے بڑے سے نکاح کرنے کو وہ لوگ برا نہیں سمجھتے ہیں. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے بزرگ علماء سے لوگ اپنی جوان بچیوں کی شادی کروا دیتے ہیں. خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کن سے نکاح کیا تھا؟ حضرت علی کی بیٹی سے. کن سے؟ حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کس نے کیا تھا؟ عمر ابن خطاب نے. کتنی عمر کا ڈفرنس رہا ہوگا. اور اس ضمن کے اندر ایک بات, جب کوئی اعتراض کرے تو اسے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی جوانی میں نکاح کن سے کیا تھا؟ اور عمر کتنے تھی حضرت خدیجہ کی؟ تب اعتراض نہیں کرتے کہ بوڑھی سے نکاح کر لیا, یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ جوان سے نکاح کر لیا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی نکاح کا ارادہ اگر شہوت کو پورا کرنا ہوتا تو پہلا نکاح کس سے کرتے؟ کنواری عورت سے کرتے کہ نہیں کرتے؟ جوان لڑکی سے کرتے, کنواری سے کرتے. پر آپ کا وہ مقصد ہی نہیں تھا. آپ کا مقصد تھا ہر قبیلے کے اندر دین کو پہنچانا, ابو بکر صدیق سے اپنے رشتے کو مضبوط بنانا, اور آپ کو وہ نکاح کا پیغام پہنچایا گیا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے 50 سال, نبوت کا تقریباً 11واں سال اسٹارٹ ہوا تھا, آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا, اور 90 سال کے اندر آپ کی کیا ہوئی؟ بدائی ہوئی. کیا ہوئی؟ بدائی ہوئی. تو ابھی تک میں نے جو باتیں آج آپ کے سامنے رکھی, میں نے کس سال کی عمر سے شروع کی باتیں؟ 50 سال کی عمر. مہینہ شوال کا مہینہ. آپ طائف کے سفر پر گئے, طائف پر ساتھ میں کس کو لیا؟ زید بن حارثہ کو. کون سے قبیلے کو دعوت دینے گئے؟ قبیلہ ثقیف کو. سب سے پہلے 3 سرداروں کے سامنے دین رکھا, ان کا نام عبدیالیل, مسعود اور حبیب. تینوں نے کیا کیا؟ کتنے دن تک آپ طائف میں رہے؟ 10 دن تک. پھر وہاں سے دعوت دے کر واپس جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا, پتھر مارے, پہنوں سے خون دے کر کہاں آ گیا. اور اللہ کے نبی نے اس کی حدیث کی کتاب میں کہاں پر ہے یہ حوالہ؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3231. جب فرشتے نے کہا کہ میں نے پیس دوں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں کیا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایمان نہ لاتے ہیں نہ لائیں, ان کی نسلوں میں ایمان پیدا کر دے. اور اس طائف کے واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ فائدہ کیا ملا؟ ہاں, سرداروں کو دعوت دینا چاہیے, اللہ کے نبی کا صبر, اللہ کے نبی کی دعا پتا چلی. اس کے بعد میں نے بتایا عداس کا واقعہ ضعیف ہے. اس کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو کس مقام پر قرآن پڑھ رہے تھے, اور وہاں پر کس نے سنا تھا؟ کہاں ملے گا قرآن میں یہ واقعہ؟ ماشاء اللہ. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اسلام کیوں دیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ آپ کو سکون دینا, سفر کے مقصد کو پورا کرنا اور آپ کو سکون دینا. ماشاءاللہ. اس کے بعد جب مکہ آنے کے پہلے آپ نے کیا تلاش کیا تھا؟ جوار, سپورٹ تلاش کیا تھا. سپورٹ کے لیے 3 لوگوں کو آپ نے کہا تھا. پہلا شخص اخنس بن شریک, دوسرا شخص, اور تیسرا مطعم بن عدی نے کیا کیا تھا؟ قبول کر لیا, آپ کی مدد کی, آپ کا سپورٹ کیا. اور آپ سسم ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. مطعم بن عدی کی آپ بہت عزت کیا کرتے تھے, بہت عزت کیا کرتے تھے. اس کا ابو بکر صدیق نے کس کا سپورٹ لیا تھا؟ پر ابن الدغنہ نے جب کہا کہ تمہیں دھیرے پڑھنا پڑے گا, عبادت سے باز آ جاؤ, تو انہوں نے کیا کہا؟ تمہارا سپورٹ تمہارے پاس, میرا سپورٹر کون؟ اللہ اور اس کے رسول. پھر ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی نے کن قبیلوں کو دعوت دی؟ مشہور قبیلے میں نے بتایا, ویسے تو بہت سارے قبیلے. 3 قبیلوں کے نام, بنو کلب, بنو حنیفہ اور بنو
आमिर, और उसके बाद इसी दौर के अंदर दो मशहूर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, अबू ज़र ग़िफ़ारी और तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी। इससे पता चला कि इस्लाम मक्का से बाहर जाने लगा है। और तुफ़ैल के वाक़े को मैंने बताया, क्या बताया, मक्का वालों ने उनसे क्या कहा था, कानों में रुई लगा लीजिए। फिर आए आप काबा के अंदर, देखा अल्लाह का कलाम जब सुना, दिमाग में आया, फौरन क्या कर लिया। तो इससे पता चलता है कि कुरान के सुनने में भी तासीर है। समझ में आ रहा है आपको, कुरान के सुनने में भी। मैंने एक बताई थी सूरत, आपको किसी के नाम बताया था कारी का, सुना किसी ने, क्या नाम था उनका, इदरीस अबकर। सूरे कैसा लगा आपको अकेले में सुन के सूरत, अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है सीधी दिल में उतर जाती है। अरबी नहीं भी समझ में आएगी तो भी ऐसा लगेगा दिल में बात उतर है, इतना प्यारा लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान के सुनने में भी तासीर दी है। किसमें, आज एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान को कहते हैं कि इक़रा अलैया, क्या कर, कुरान पढ़, क्या कर भाई, कुरान पढ़। तो हजरत उस्मान कहते हैं भाई आप पर कुरान नाजिल हुआ, आपके सामने मैं कैसे पढ़ूंगा। तो आपने कहा पढ़, मुझे सुनना है, मेरा सुनने का मन हो रहा है। अल्लाह के रसूल कुरान सुनते सुनते आपकी आंखों से आंसू इतने आते हैं कि पूरी दाढ़ी गीली हो जाती है। क्या हो जाती है, क्योंकि कुरान के सुनने के अंदर तासीर है, कुरान के अल्फाज में तासीर है, कुरान की तिलावत में तासीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के हर हर्फ के अंदर तासीर को डाला है। इसलिए हेडफोन लगाकर गाने सुनने की बजाय अपने आप को कुरान का आदी बनाइए। किसका आदी बनाइए, क्योंकि कुरान वो चीज है जिसमें सुकून है, कुरान वो चीज है जिसमें इत्मीनान है, कुरान वो चीज है जिसमें इबादत है, कुरान वो चीज है जिसमें सवाब है, कुरान वो चीज है जिसमें रास्ता है तकलीफों से निकलने का, कुरान वो चीज है जो आपके जहन के स्ट्रेस को खत्म करती है। इसलिए एक मोमिन को कुरान पढ़ने और कुरान सुनने की आदत बनाना चाहिए। सुनेंगे कुरान आप लोग भी इंशाअल्लाह, अच्छे से अच्छे कारी को तलाश कीजिए और इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत सुनिए। और आज आखिरी की बात मैंने आपको बताई, किनका निकाह, हजरत आयशा सिद्दीका का निकाह। और निकाह के वक्त अल्लाह के नबी की उम्र 51 साल या 50 साल, हजरत आयशा की उम्र, और आपकी विदाई कब हुई थी, 9 सालों। मैंने मुख्तसरन बताया कि निकाह का मकसद क्या था। भाई आपका मकसद अपनी शहवात को पूरा करना है, जवान लड़की से शादी करना नहीं। अगर वो होता तो आप सबसे पहला निकाह किससे करते, कुंवारी लड़की से करते। पर आपने पहले निकाह में कितनी बड़ी औरत से शादी की थी, अपने से 15 साल बड़ी। कितने साल बड़ी, 15 साल बड़ी। दूसरा निकाह किनसे किया था, हजरत सौदा से। दोनों मुतल्लका थी, दोनों पहले शोहर दो हो चुके थे, उसके बाद निकाह किया था। इस वक्त आपने कुंवारी लड़की से शादी की। और आपके अलावा भी लोग ये अमल करते थे, अरब के अंदर ये दस्तूर आम था। और एक बात बीच में छूट गई कि आपके अलावा वो कौन से नबी है जिन्होंने सपोर्ट मांगा था, हजरत मूसा। किनका सपोर्ट मांगा था, हारून का। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और